So how to see the PDF? This is the first question. तो अगर इसका हम जाएंगे PDF कैसे देखेंगे? Let's take sixth house, job place, whether a person will get a job or not. तो यहाँ पे we are taking the sixth house and sixth house में हम क्या देख रहे हैं कि सन एंड मून, मंगल और शनि, these are the powerful planets. So that means के PDF we should choose the PDF among the four. लेकिन the problem is के कैसे देखेंगे? से कि अभी उसका we take something like sun antra and sun is LOD for the sixth house. So Right. what we have to do now, तो सन में क्या लेंगे? सन को तो निकाल दिया हमने से, राइट? बिकॉज दिस इज LOD, और बाकी PDF हुआ मून, मंगल और शनि. सो वी विल गो टू द, मेरे ख्याल में इसी पे है शायद. यस Anup ji, why did you remove sun? Sun is already. I didn't remove, but you say this is antra of sun actually. I didn't remove. ठीक है ना? We can take it. We can take it. Okay. Okay. It depends. Okay. Now ये इसका सबसे पहले शनि का देखेंगे. शनि और मंगल आ रहा है. एक ये है, right? वो enter house, we have to enter the 6 or you can keep it 11. No, I didn't enter actually. मैं ऐसे ही देख लेता हूँ. Okay. Right? Okay. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो शनि आएगा ना. शनि का ये चल रहा है सारा, ये वाला जो भी पीरियड चल रहा है. तो आफ्टर दैट वी विल सिलेक्ट मंगल और मून. मीन्स के जैन में या फेब में इसका PDF मिल रहा है हमें जॉब के लिए, राइट? दिस इज द रूल व्हाट वी फॉलो. और No, Anup ji, जी, in that enter house, we have to enter the number 6 or we can keep. no, okay, you say I will enter 6. Okay, Okay. now you can take it. Okay. Right. So you are getting the PDF Shani Sun, Shani Moon, and Shani Mangal, and then Mangal Sun, and Mangal Saturn, and Sun, and Mangal Saturn. Right? Okay. अभी this is an example chart, right? Yeah. तो आपको ये दिखना है कि जैन फेब में एक तो चांसेस है, और एक मई में चांसेस है, एक जुलाई में चांसेस है PDF के, सितंबर में, एंड सिमिलर इसका चांसेस है मंगल और शनि के. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके, सो हाउ यू लुक एट दिस? फर्स्ट यू एक्सप्लेन दिस, कौशिक जी, आप कैसे लेते हो इसको? We have to see whether there is any delay in getting the job with respect to Saturn or Jupiter. So if it is sorry, मैं आपको रोक रहा हूँ. For the job, we look for the ashram only, right? And first ashram, the native might be not getting the job, okay? Because this is education, you say, is section for the person or till the age of 25 शायद उसको जॉब ना मिले. Okay. राइट? Okay. इसमें सैटर्न और गुरु डिले का चांसेस यहाँ इसका हम नहीं लेते कि सैटर्न अगर फोर्थ में बैठ गया तो देन दिस विल डिले द जॉब. आई विल एक्सप्लेन द क्राइटेरिया के हाउ टू लुक दैट. ओके. सो मनु जी, आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा. अनुप जी, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है आपको बताता हूँ.
So basically, first of all, of course, we are assuming that हमने Andhra already select कर लिया है, and Andhra का starting point, let's assume for the sake of argument, is that Jan से ही चालू हो गया वो Andhra, so that all the PDFs are equally applicable. Okay, done. Now, if the Andhra started from Jan, then the first hit from the Andhra should give. लेकिन आपने एक बार ये भी बोला था कि within the Andhra the number of zeros will tell us कि within the Andhra कितना delay within Andhra हो रहा है. Okay. So if it is like no zeros, then it will give the PDF, the first PDF will give us the result. The first, okay. Like in this case, Saturn Sun will give us the result. If there is 1 0, then it will go inside the Andhra. But I don't know the details, Anupji. Okay. All right. All right. It is processing. I want to go to natal chart and Navamsa. Let me, yes. कुछ हो गया इसका क्लिक हो गया. Okay, done. So here we go. Saturn को आप निकाल दो. तो sometime you might have noticed that ये 30 points हैं या 19 points हैं, and what you will predict कि भैया इस PDF में जॉब मिल जाएगा. Yeah. बट कई बार ऐसा चांसेस नहीं होगा. वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. This was necessary to explain if all the planets are giving more than 12 points and how you will choose the PDF, right? और किस PDF को आपने साइट पे लेना है और किस PDF को चूज करना है. तो इसमें क्या हो गया कि first for the 6th house, this is the Karak, Gemini, and Mercury is in the Sagittarius, right? And तो गुरु हो गया ना इसका अंश. तो गुरु is in the 7th house. So Guru, you can choose that Guru is eligible for the PDF. Number 1. Okay. मैं रीजन बताऊंगा बाद में, राइट. नंबर 2, अभी इसका मूल कारक हो गया शनि, और शनि हो गया आपने शनि इज इन कैंसर नवामसा, right, and moon is in Karak house, right. So what we will say that moon PDF is also eligible, right. ये आप स्टार्टिंग में कर रहा हूँ. why इसका बाद में I will explain why so. Okay, so this is for only 2 planets. Now why we are choosing these 2 planets? Suppose this is Karak and Mercury is the Lord, and Mercury is in the Capricorn and not in Sagittarius, in Navamsa. Suppose कहाँ गया भाई ये, किस इधर हो गया. हाँ, तो ये अगर आपका इधर चला जाता कैप्रिकॉर्न में, तो शनि हो गया इसका कारकांश. तो शनि बैठ गया 12th में. तो दिस इज एक्सपेक्टिंग, वी हैव टू चूज द सेम थ्योरी. यू हैव टू चूज शनि इज एक्सपेक्टिंग द 6th हाउस. शनि को आप साइड पे लगा सकते हैं. दैट शनि विल नॉट एज PDF will be not eligible to give the job
or this will delay the job, okay, or this will deny the job. आप इसके 22 पॉइंट देख रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि ये जॉब देगा आपको. Okay. Number 1. Number 2, looking at the present scenario, Mercury is in Sagittarius और गुरु जो बैठ गया आपका 7th में बैठ गया, that is already for the 10th house. Yes. So this is nothing to do with the 6th house. जो अंश है 6th house को कुछ नहीं कर रहा है, right? फिर से आ गया आपका मून इज सिटिंग इन द कारक हाउस, बिकॉज यहां से देखा ना हमने मूल कारक को. मैं आपको इसका नटशल बताऊंगा. और मून बैठ गया कारक हाउस में. सो मून के पॉइंट्स तो हैं ठीक ठाक. सो मून को आप साइड पे रख सकते हो, भैया मून दे देगा आपको. फॉर मून, इफ यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन सैटर्न एंड मून, यू विल चूज द मून अंतरा, सॉरी मून पीडीएफ, नॉट द सैटर्न. Yes. Okay, don't go for 22 points. Okay. So आपको ये शनि नहीं चूज करना है, यहाँ पे आपको मून चूज करना है. Okay. Right. तो अगर इसी तरह से you have to choose the PDF ansha. Try to understand what I am saying. मनु जी आपको सुनाई दे रहा है कुछ? हाँ जी. Are you trying to understand what I am saying? The laws are same actually. Yeah. The problem is how to choose. अगर शनि यहाँ पे, मैंने बोला ना कि ये मरकरी है, मरकरी अगर कैप्रिकॉर्न में होता तो Capricorn means Shani is aspecting. Yes. So what it will do? इसको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, या तो डिनाई करेगा, इसको अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, लेकिन सिलेक्ट नहीं होगा. ओके, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? अरे यार 22 पॉइंट, आपको जॉब मिलना चाहिए था, जॉब क्यों नहीं मिला? इस पीडीएफ को आपने चूज तो कर लिया, लेकिन इस पीडीएफ में जॉब नहीं मिला इसको. ओके. राइट. अनुप जी, हाँ बोलिए. अगर हम लोग मून को देखते हैं, मून इज ऑल्सो इन द नवमसा ऑफ सैटर्न. ओके. एंड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग 6th हाउस. ओके. तो ठीक है, अंशा सैटर्न है, लेकिन मून सैटर्न के अंशा में बैठा है, तो क्या मून फिर भी देगा? Just because the moon is in the Karak house and this is also ansha of the Mool Karak. Okay. This has more numbers as an eligibility, I will say, because this is also controlling the 6th house. With the more bindus. 5 point है इसके. So this is controlling the 6th house also, beside Gemini. I mean to say Mercury. ठीक है. अभी मनु जी बोले कि मून हैज गॉन टू इन नवामसा, मून हैज गॉन टू कहाँ गया? Saturn. I mean to say Aquarius, and Saturn is aspecting 6th house. तो मनु जी यहाँ पे क्या होगा कि मून लेने का वजह ये होगा, मून, why moon will be eligible? Because moon has more numbers in the sense कि this is, first of all, this is controlling. ठीक है. लेकिन उसका जो inner energy है, that is Saturn, that is opposing. हाँ, मून में क्या होगा कि उसको इंटरव्यू लेटर भी आएगा, और माइट भी पॉसिबल कि वो उसका इंटरव्यू भी हो जाए. ओके. उसको अगर व्हाट इज द डिफरेंस, मैं समझ गया आप जो बोलना चाहते हो कि सैटर्न यहाँ पे मूल कारक सैटर्न है, और सैटर्न इज इन द मून.
तो मून इज इन द सो कारक हाउस, सो मून इज इन ए हेल्दी वे, हम ये बोलेंगे कि कंट्रोल कर गया उसको। लेकिन मनु जी का क्वेश्चन ये हो गया कि अभी मून को भी लेना है, बिकॉज मून इज ऑल्सो इन द कारक हाउस, 5 बिंदु से है, तो मून इज इन द ऑकेरियस और शनि इसको देख रहा है। सो क्या होगा कि इसका जो एस्पेक्ट है दैट इज डायरेक्ट 7th एस्पेक्ट, सो you have to choose wisely because moon will be still eligible. Yeah. Understood. अगर इस So basically, हाँ बोलिए। so basically जैसे आपने बोला कि पीडीएफ और कारक अंश का रिलेशनशिप है, मतलब कारक अंश बिकम द पीडीएफ इन अ वे, पीडीएफ लॉर्ड्स। करेक्ट। क्या है मनु जी, शायद आपको याद हो, मैंने शायद वेबसाइट पे डाला हुआ है ये पॉइंट कि हाउ टू चूज बिटवीन द 2 समधर्मीज। एक पॉइंट था ना वहां पे, एक लाइन पे मैंने दिया हुआ है कि हाउ यू विल चूज, अगर 2 समधर्मी है आपको कौन सा समधर्मी चूज करोगे आप, कि विच इज बेटर समधर्मी, तो उसी समधर्मी को चूज करेंगे जो एस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं उसको। करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा थ्योरी है अंशा का, इन एनर्जी। तो कारक और मूल कारक का जो अंशा है या अंश है, जो इफ दैट इज एस्पेक्टिंग द 6th हाउस, दैट मीन्स कि दैट इज नॉट एलिजिबल, दैट इज नॉट एलिजिबल। इनर एनर्जी की बात नहीं मैं कर रहा हूं यहाँ पे व्हाट आई एम टॉकिंग के उसका जो पीडीएफ है, मान लो, फिर से समझो इसको, यू विल स्टिल कंफ्यूज, इसको आप कंफ्यूज करोगे थोड़ा, आई नो, कि आप इसको करोगे कि सैटर्न नहीं दे रहा है, एग्जैक्टली सैटर्न नहीं दे रहा है, लेकिन सैटर्न इज इन मून एंड उसका जो है अंश बैठ गया कारक हाउस में, ठीक है, ऐसा बोल रहे हो आप। लेकिन यहां पे सैटर्न डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है, जिसका इनर एनर्जी अपोज कर रहा है। सीधा सा पॉइंट देखो कि जिसका इनर एनर्जी अपोज कर रहा है ना, आपको वो चूज नहीं करना उस हाउस के लिए पीडीएफ। ओके, अभी सैटर्न इज इनर एनर्जी फॉर द मून, ठीक है, तो मीन्स के अगर इनर एनर्जी इसको कह रहा है कि भैया मैं नहीं रिजल्ट देने वाला हूं, मैं इसको एस्पेक्ट कर रहा हूं, तो वो आप उसको साइड पे रख सकते हो। लेकिन अगर मून यहां पे होता फिर आप साइड पे रख सकते थे 2nd हाउस में, राइट। लेकिन दिस मून इज इन द कारक हाउस दैट इज कंट्रोलिंग द 6th हाउस, राइट। सो इट इज स्टिल एलिजिबल, उसको इंटरव्यू लेटर आएगा, उसको इंटरव्यू कॉल भी आएगी, right? In this case, you can choose moon yeah. और इसका देखिए मंगल है LOE, right? अभी मंगल की बात करते हैं, तो मंगल इज LOE इसका, तो LOD है सन। हम LOD और LOE की बात नहीं कर रहे यहाँ पे हम करेंगे पहले तो अपना एक थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन से प्लेनेट जो है ना इसके इंटरेस्टेड है। ये 3 तो साइड पे रख दो यहाँ पे, ये तीनों को। अभी 4 में से आपको कैसे चूज करना है कि इसको जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, सो अनूप जी, सन को, ओके, व्हाई डिड ही नॉट चूज सन? यस, वाई? क्योंकि सन इज नॉट कंट्रोलिंग द 6th हाउस। तो डोंट कंफ्यूज कि आप किसको कैसे अंशा देखना है, मींस एज एन प्लेनेट देख रहे हो या उसकी इनर एनर्जी देख रहे हो। उस पीडीएफ का अंश देखना आपने। अगर पीडीएफ का अंश एस्पेक्ट कर रहा है उस बी हाउस को, you have to keep aside that PDF on planet. अच्छा,
ओके। अच्छा अनूप जी, यहाँ पे मंगल, ओके, सो बेसिकली सैटर्न इज रूल्ड आउट, मून इज सिलेक्टेड, sun is not selected because sun is not controlling. Correct. But okay, and how about मंगल? मंगल को सन को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, सही बात, ठीक है, दैट इज करेक्ट। हाँ जी। देखो ये आपके पास 3 ऑप्शन है अभी, सन, मून एंड मंगल। शनि को तो छोड़ दिया ना आपने? हाँ जी। ठीक है, अभी आपके पास ये 3 है और इसमें क्या होगा कि 1-2 पीडीएफ आपको मिलेंगे। yes. 1-2 पीडीएफ आपको मिलेंगे जिसमें यहाँ इंस्टेंटली यहाँ तो वो जॉब सीधा मिल जाएगा उसको। इसमें से लेस मेलिफिक कौन है, प्योर अंतरा कौन सा आपको चूज करना पड़ेगा। सन इज इन द रूट कारक हाउस, सन को ले पहले, सन इज इन ओकेरियस, तो सन भैया इतना बढ़िया नहीं हुआ ना उसके लिए। ओके, सन की एनर्जी इज एस्पेक्टिंग हाउस बी। अभी कमिंग टू द मून, मून एक ही प्रॉपर्टी है मून की बढ़िया, अभी मून का अंशा भी सैटर्न है लेकिन मून इज कंट्रोलिंग द 6th हाउस, तो मून को एक चीज को हमने साइड पे रख दिया, मून। ओके, नाउ कमिंग टू द मंगल। अभी मंगल क्या हो गया, गुरु का समधर्मी हो गया एंड मंगल इज इन द मंगल इज हाउस बी, तो भैया फिर आपको मून और मंगल का ही चूज करना पड़ेगा ना। ठीक हो गया? ओके अनुप जी, वन मोर क्वेश्चन। श्योर। अभी अगर हम लोग कारक काउंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं फॉर पीडीएफ सिलेक्शन, करेक्ट, राइट, दैट मींस हम हमेशा नवमसा लॉर्ड्स एक तरह से ले रहे हैं। सो राहु एंड केतु तो बीच में आएंगे ही नहीं, बिकॉज नवमसा लॉर्ड्स तो कभी राहु केतु हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे राहु एंड केतु का सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे होगा? ओनली थ्रू समधर्मी शिफ्ट टू दीस प्लैनेट्स? यू हैव टू चूज द सेम पैटर्न, क्योंकि वहां पे एक की जगह 2 प्लैनेट आ गए ना आपके। तो मनोज जी ऐसा है कि आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, क्योंकि इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट है ये चीज, क्योंकि पीडीएफ में गए नहीं, घुसे नहीं हम। पीडीएफ क्या है, लेवल 1 पे देखा आपने, लेवल 2 पे आपने पीडीएफ नहीं देखा। ठीक है, तो लेवल 1 पे क्या है यार, ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो पीडीएफ देगा, इसका चूज कर लो। वहां पे जैसे कौशिक जी ने बोला 6 नंबर दे दो, जॉब का है ना, 6 नंबर दे दो, 6th हाउस के लिए आ जाएगा। लेकिन वो पीडीएफ में भी आपको लेवल 2 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर जो प्लैनेट, देखिए मैं फिर से बोल रहा, जो प्लैनेट, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ओके जस्ट ए मिनट, हाँ, उससे शेयरिंग से थोड़ा बैंडविड्थ चेंज हो जाएगा। तो जो प्लैनेट 6th हाउस में बैठ गए, 1 2 3 कोई भी है, तो वो अगर पीडीएफ के अंश हैं, अगर इनर एनर्जी बनते हैं पीडीएफ प्लैनेट्स के, तो वो पीडीएफ क्विकली आप चूज कर लो। क्विकली चूज कर लो कि ये प्लैनेट हाउस बी में बैठ गए, ये अंश किसके हैं, ये इनर एनर्जी किसके हैं। ठीक है, ओके, लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा उस पीडीएफ में वो कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, रेड में तो नहीं है वो पॉइंट। पहले तो लेवल 1 पे देखना पड़ेगा ना आपको, दिस इज लेवल 1। यस। ठीक है, लेवल 2 पे फिर देखना कि वो जो प्लैनेट बैठे हाउस बी में, वो वाले जो है इनर एनर्जी हमारे वो प्लैनेट हैं जो जिसके पॉइंट 12 से ज्यादा है। ठीक है, मोर देन 12 पॉइंट्स, तो दैट इज लेवल 2। तो आराम से आप उसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, बढ़िया रहेगा आपके लिए, दिस इज गुड पॉइंट आपसे। ठीक है, नाइस, या। तो थैंक यू सो मच अनुप जी, दिस वाज रियली गुड। अभी बस क्या है,
होमवर्क करना पड़ेगा इस पे। नहीं एग्जैक्टली दिस इज ओनली फॉर, देखिए होमवर्क करोगे तो एक ही फंडा है आपका, जस्ट फिल्टर आउट फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 1 एंड देन गो टू लेवल 2। लेवल 1 पे रेड वाले साइड पे कर दो आप, ठीक है। मे बी वो रेड वाला इनर एनर्जी बन गया तो हाउस बी में बैठ गया, देन यू हैव टू रीथिंक, राइट ये रेड में तो है तो लेकिन हाउस बी में बैठ गया ये प्लेनेट, दैट मीन्स कि वो बंदा छोड़ रहा है बेटर जॉब के लिए। दिस कुड बी द बेटर रीजन। yes डोंट गो बाय माय वर्ड्स कि मैं जो बोल रहा हूँ कि हो सकता है उसमें स्टिल देयर इज मोर टू एक्सप्लेन, तो आप उसको इस ढंग से उसको देखिए थोड़ा। yes okay good ठीक है ना। Sure. तो इसको इग्नोर इमीडिएटली नहीं करना, लेकिन इसको फिल्टर आउट कर देना आपने। लाइक रेड में, रेड को साइड पे रखो पहले, तो जस्ट फोकस ऑन द प्लैनेट्स विद द मोर पॉइंट्स, ठीक है। तो उसके बाद आप फिल्टर आउट करो कि इनका इनर एनर्जी कौन सा है। वो अगर इनर एनर्जी हाउस बी में बैठ गया, जैसे गुरु बैठ गया, मान लीजिए इसी चार्ट में गुरु बैठ गया हाउस बी में, जस्ट हाइपोथेटिकल, so good energy this was your long lasting demand, I know, I could understand, लेकिन मैंने आपको यही बोला था, प्रॉमिस किया था आपको बताऊंगा डेफिनेट, लेट द बेटर टाइम कम। क्या हो चार्ट सामने हो, मेरे चार्ट सामने हो, मैं फोन पे नहीं बता पा रहा हूँ आपको। yes right, got the point, right so once you will understand the things slowly you will apply on the charts, then this will become your habits also। और अपनी हैबिट्स को चेंज करना इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो। अभी भी क्या होता है, कई बार मेरे में पुरानी हैबिट आता है, यार पहले एलो डी और ई देख लो, सीधा किसी का चार्ट देखना, वी डोंट एनालाइज यार लगना कौन सा है, ये इसका क्या प्रॉब्लम क्या, वो नहीं देखना, सीधा उसको फोकस करके। कोई भाई साहब आया, मान लो मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम, आप सीधा क्या करोगे, डी और ई देखोगे। जस्ट चेंज योर हैबिट, आई विल से जस्ट गिव मोर टाइम टू द चार्ट, लगना चेक करो, उसका रेक्टिफिकेशन चेक करो, देन गो फॉर द मोर प्लैनेट्स, उसका अंश देखो, तो कौन उसको एस्पेक्ट 10 को प्रॉब्लम कौन दे रहा है, उसको चियोटी कौन काट रहा है, ठीक है। तो उस जितने बंदे 10th को प्रॉब्लम दे रहे हैं उसको साइड पे कर दो पहले, पीड़ा संज्ञा जैसे गुरुजी ने बोला है ना, तो उसको साइड पे रख दो आप। तो दैट विल बी गुड, आई थिंक। तो ऐसे selecting a PDF is we always say in the mails choose pure PDF। तो मैं लिखा मैंने 1-2 बार मेल में, तो nobody understood के कैसा ये प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर मीन्स कि भैया इसका उस हाउस से कोई लेना देना नहीं है, एस्पेक्ट नहीं है, इनर एनर्जी एस्पेक्ट नहीं कर रही, तो वो प्योर हो गया। नेक्टर, इट्स अ काइंड ऑफ नेक्टर यू से। उसको फिल्टर किया लेवल 1 पे, देन वी अगेन फिल्टर लेवल 2 पे, फिर हमने उसको सिलेक्शन में लिया। अच्छा अनुप जी, एक क्वेश्चन है। सो जैसे अभी इस केस में अभी हमने राशि और नवमसा चार्ट यूज किया है, शुड वी आल्सो यूज अदर डिविजनल चार्ट्स, जैसे इस केस में D24 भी देखेंगे क्या इसी चीज के लिए? For you say 10th house you can see, अच्छा, you can use and make your understanding, okay promotion purpose I will say। got it। लेकिन जितना गुरुजी ने बताया मैं उतना ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आई वॉन्ट से कि ये ऐसा हो सकता है, गुरुजी ने ऐसा नहीं बोला। No, for PDF, I think no need to go into that divisional charts. But divisional charts is for only for quality. उसमें देखता है ना। Correct. That is why what I am saying. First is they should get the job or change of job. Then only we should go for the PDF. Yes. Initial image नहीं है तो उनको job का कैसा मिलेगा? वो then it is going to be a problem.
That I think so. That sure. So I think वो सही है कि we have to go only, we have to find only in energy. ठीक है. What you are talking, Manuji, that is for the to finding the antra. Got it. है ना? So इस तरह से थोड़ा सा ठीक लगेगा और मुझे भी थोड़ा रिवीजन हो गया मेरा और मैं प्रैक्टिस में आई एम स्टिल इन प्रैक्टिस. ये मैं प्रैक्टिस करता हूँ इसकी. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए तो कर लेते हैं हम. तो इस तरह से PDF itself is a probabilistic date finder, so only we should go for that timing aspect. So not about when they will get the job. अभी देखिए कौशिक जी क्या होता है कि मोस्टली एक्सेप्ट कैंसर और लियो लग्न क्या है कि सभी डाइसी हो जाते हैं ना, वो डुअल साइन है सभी के. तो पीडीएफ बढ़ जाते हैं. पीडीएफ बढ़ जाते हैं. सो दिस इज फॉर डुअल साइन यू नो प्लैनेट्स के जहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा. Okay. Nice, Anupji. Nice. So I hope that you understand or you can apply now. That's the better thing. You have to apply for the chart. I think. Yes. Thank you, Anupji. No, it's okay. So इस तरह से PDF को चूज किया. आप प्रैक्टिस कीजिए. कोई देख चुका चार्ट उस पर प्रैक्टिस कीजिए. Then make your questions के इसमें ऐसा हुआ, लेकिन क्वेश्चन नहीं, फिर आप वैसे देखिए, आपको कोई प्रॉब्लम या लॉजिक समझ आ जाएगा धीरे धीरे. Yes. Not controlling the 6th house.